منافع خور اور ذخیرہ اندوز خیر منائی سندھ حکومت آئندہ ہفتے سے کارروائیاں شروع کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل ہی منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی جا رہی ہیں۔ محکمہ قیمت و رصد آئندہ ہفتے سے ایکشن کرے گا۔ اجلاس میں تمام متعلقہ اداروں کو طلب کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم مسلمان جب ماہ رمضان یا کوئی بھی تہوار آتا ہے تو قیمتوں پہ اضافہ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، لیکن اس بات سے اختلاف کروں گی۔ سی ایم صاحب نے ایک جامع پلان دے دیا ہے اور اس کی میٹنگ جو ہے وہ آج کل میں کسی بھی وقت منڈے کو ہوگی، اور جس طرح پچھلی دفعہ فوڈ کنٹرول کے لیے جو ایڈوائزر ہے وہ کام کر رہے تھے، آپ کو وہ نظر آئیں گے مارکیٹوں میں، کیونکہ ہم لوگوں کو آسانی دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت بہت مہنگائی ہے، بے روزگاری کی شرح پاکستان میں بڑھ رہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تمام ہر بہن بھائی ہر مسلمان کے لیے ہوتا ہے، اور جو مہنگائی ہے اس وقت اس کو بالکل حکومت کنٹرول کرے گی۔ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ جامع پلان کر رہا ہے۔ اب اگلے ہفتے سے اس پہ ایکٹیویٹی نظر آئے گی، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جتنا زیادہ پرائس کو کنٹرول کر سکے۔ بلدیہ اسما کراچی کے زیر انتظام تاریخی مارکیٹوں کی بحالی کا کام جاری۔ ایمپریس مارکیٹ، حسن علی ہوتی مارکیٹ، سولجر بازار کے بعد سول لائنز مارکیٹ کو بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میئر کراچی نے محکمہ انجینئرنگ کو 1927 میں قائم ہونے والی سول لائنز مارکیٹ کے سر نو تعمیر کے احکامات دے دیے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ رواں سال بلدیہ اسما کراچی کے زیر انتظام سول لائنز کی مارکیٹ کو بحال کیا جائے گا۔ کے ایم سی کے زیر انتظام مارکیٹوں میں سولر سسٹم بھی نصب کیا جا رہا ہے۔ کرائم کی دنیا سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون 11 گھنٹے چلتا رہا۔ آگ سے ایک فیکٹری چلی، دوسری لپیٹ میں آئی، تیسری بچ گئی۔ کپڑوں اور جوتوں کے گودام میں خوفناک آگ لگی۔ فائر بریگیڈ عملے نے طویل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اسامہ ملک کی یہ رپورٹ۔ کراچی میں ایک اور بڑی آتش زدگی کا واقعہ، فیکٹری میں لگی آگ، پورا گودام نگل گئی۔ لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں واقع پلاسٹک دانہ بنانے والی فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے عقب میں واقع گودام کے 3 منزلہ عمارت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی کی اطلاع ملتے ہی ابتدائی طور پر 6 فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے، تاہم آگ کی شدت کے پیش نظر اسے تیسرے درجے کی آگ قرار دیتے ہوئے شہر بھر سے مزید فائر ٹینڈرز طلب کر لیے گئے۔ فیکٹری اور گودام کے چاروں اطراف سے 3 اسنورکل، 4 واٹر باؤزر اور 20 سے زائد فائر فائٹنگ گاڑیوں کی مدد سے ریسکیو آپریشن ساری رات جاری رہا۔ ریسکیو 1122 اور پاک بحریہ کے فائر ٹینڈرز نے بھی آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کے مطابق 14 گھنٹے سے زائد طویل جدوجہد کے بعد فیکٹری اور گودام میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سب سے زیادہ پرابلم جو ہے مقصد یعنی کہ جو ہماری گاڑیاں یہاں پر پہنچی ہیں تو الحمدللہ واٹر بورڈ کے جو واٹر ٹینکر تھے وہ ہمیں بالترتیب ملتے رہے، اور یہ ہے کہ پانی کی کوئی شارٹیج نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو آلریڈی 3 نمبر کا ہم نے ڈکلیئر کرنے کے بعد جو ہے یہ 6 سے 8 گھنٹے کے اندر ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا۔ سیکریٹری ایکسپورٹ پروسیسنگ زون غلام یاسین نے بتایا کہ فیکٹری میں موجود آتش گیر مٹیریل کے باعث آگ پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ فائر سیفٹی نظام میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ ہمارے ایفرٹ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری رات ہماری یہ ٹیم کھڑی تھی، یہ ہمارے بھائی کے ایم سی والے، یہ ہماری ٹیم پوری کھڑی تھی، پوری رات آپریشن چلا ہے، اور ابھی ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ ماڈرن پلاسٹک آپ کے سامنے ہے، ایک فلور پہ کے ان کا نیچے والا جو مٹیریل ہے اس پہ انہوں نے آگ لگنے نہیں دی، ان کی پوری ٹیم نے وہ کوشش کی ہے، اور ان کا وہ را مٹیریل پورا بچ گیا ہے۔ حکام کے مطابق آتش زدگی کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم کولنگ کا عمل 2 سے 3 روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 21۔ شہر قائد میں بنیادی سہولیات کا فقدان۔ 3 ہٹی میں گیس کی فراہمی نہ ہونے کے باعث خواتین پریشان، کہتی ہیں کھانا بنانے کے لیے گیس آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، بل بھیج دیتے ہیں، گیس نہیں ملتی۔ رمضان میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہے رمشا اسماعیل۔
कराची के इलाके तीन हटी अंगारा गोड में गैस की अदम फरामी और प्रेशर में कमी के बाइस ख़वातीन शदीद परेशान। ख़वातीन का कहना है कि घरों में खाना बनाने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। बिल तो बाकायदगी से भेज दिए जाते हैं मगर गैस फराहम नहीं की जाती। रमज़ान में भी सूरत हाल तब्दील नहीं होती। गैस जो है ना सुबह 6 बजे की टाइमिंग है औकात कार आने की यहाँ पर, और प्रेशर इतना स्लो होता है, क्या कहते हैं ना, जब लाइट चली जाती है तो 1.5 घंटे की लाइट पे ना बिल्कुल स्लो हो जाता है। और मज़ीद और जो है ना सिलेंडर वगैरह हमें यूज़ करना पड़ता है, मेहमान वगैरह आते हैं तो ना बड़ी परेशानी होती है, बाज़ार से खाना मंगवाना पड़ता ज़्यादा था। गैस की अदम फरामी से शहरी बाहर से खाना मंगवाने पर मजबूर हैं। वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं मगर गैस फराहम करने वाला कोई नहीं। गैस के अपने औकात कार, जबकि गैस प्रेशर इंतहाई कम होता है। इलाके में गैस इसलिए नहीं आती कि जब पहले ही यहाँ पे लियारी एक्सप्रेस बना था तो उस टाइम पे जो ना उन्होंने घर तोड़े थे, जिसकी वजह से लाइनें चौक हो गई हैं नीचे और ब्लॉक हो गई हैं। तो हमने टाउन चेयरमैन को भी दी थी दरख्वास्त, लेकिन वो कहते हैं कि आप अपनी मदद आपके तहत करो, वहाँ जाके जो भी है। उनको रोड बनाने के लिए भी कहा, और भी 10 मसाइल हैं पानी के, इसके उसके, लेकिन वो सब कहते हैं कि हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता, आप वहाँ पे जाके कंप्लेन करो अपनी। तो बस यही बात है सारी उनके लिए, ये है कि चेयरमैन साहब के लिए कुछ करें, हमारे लिए भी, नदी के लिए। यहाँ पे भी रिहायशी रहते हैं और वोट के लिए आप यहीं पर ही आते हैं भाई। इलाका मकीनों के मुताबिक सड़क की तामीर के दौरान गैस पाइपलाइन मुतासिर हुई, जिसके बाद से गैस की फरामी मुतासिर है। हुकाम मसला हल करें। रमज़ान मुबारक की आमद खजूरों की ख़रीदारी में इजाफा हो गया। ईरानी खजूर 600 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब, असील खजूर 400 रुपये किलो बेची जा रही है। दुकानदार कहते हैं ज़्यादातर शहरी ईरानी खजूर पसंद करते हैं। रमज़ान में खजूरों की कीमतों में 200 रुपये किलो इजाफा हो सकता है। हमारे पास ईरानी खजूर है और जायदी खजूर है, असील पाकिस्तानी खजूर है और जायदी है, ईरानी है। ये तीनों चारों हमारे। ईरानी खजूर की क्या कीमत? 600 रुपये किलो है। असील खजूर जो है पाकिस्तानी खजूर वो 400 रुपये किलो है, 100 रुपये पाव। खजूर की क्या कीमत है? और ये मुझे ये भी बताएगा ज्यादातर लोग कौन सी खजूर जो है वो पसंद करते हैं? रमजान में लोग ज्यादातर ईरानी पसंद करता है और नरम अफ्तारी में उसको पसंद आ जाता है। वो 600 रुपये किलो है। असील जो है वो सख्त होता है और अरबी खजूर है। क्या इम्कान है कि रमजान में जो है वो कीमतों में इजाफा हो सकता है? रमजान में किलो में 100-200 रुपये बढ़ जाता है। रमजान आ जाता है तो रेट पीछे से बढ़ जाता है, फिर हम लोग। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को मज़ीद आसान बनाने का प्लान। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। एक्सपो सेंटर में माई कराची क्लाइमेट मैटर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, सरमायाकारी बढ़ाने के लिए गैर ज़रूरी पाबंदियाँ ख़त्म कर रहे हैं। स्टेट बैंक और SECP में इस्लाहात की जा चुकी हैं। जल्द FBR के गैर ज़रूरी इख्तियारात भी ख़त्म किए जाएंगे। वसीम इफ्तिखार की ये रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर कराची में एक जानिब माई कराची का मेला जारी तो दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीली, मुल्की मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी पर भी गौर। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख का कहना था कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए गैर ज़रूरी पाबंदियाँ ख़त्म कर रही है। स्टेट बैंक और SECP में इस्लाहात की जा चुकी हैं। जल्द FBR के गैर ज़रूरी इख्तियारात भी ख़त्म किए जाएंगे। FBR में आपकी तवज्जो के लिए कह रहा हूँ कि हम जल्द ही FBR के ऊपर कर रहे हैं। जो भी उनकी अननेसेसरी रेगुलेशन आप हमें बताए ताकि हम उसको ठीक करके FBR जो तंग कर रहा है, जो जिस किस्म की अननेसेसरी उनके ऑफिसर जो है, वो हमें पता है। जिस जगह पे जाता हूँ चैम्बरों में लोग यही शिकायत करते हैं, तो उसको हम ठीक करें। लेकिन उसमें कराची चैम्बर सबसे ज़्यादा काम जो करने का है वो ये है कि आप हमें बताएं और बैठे हमारे साथ कि क्या पाबंदियाँ हैं जो हमारे बिजनेसमैन को हो रहा है और किस तरह उसको हम फैसिलिटेट कर सकें। वफाकी वज़ीर का कहना था कि आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 90% से भी कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान को ज़लज़लों, स्मोक, धुंध और सैलाब जैसे संगीन मसाइल का सामना है। लेकिन हमारा उन 10 मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट से जिनका असर हो रहा है, जो सफ़र कर रहे हैं, हमारे यहाँ ज़लज़ले आ रहे हैं, हमारे यहाँ सैलाब आ रहे हैं, हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि सारा हो गया। पूरे 3 महीने 2-2.5 महीने हमारे पूरे एरियाज में, पाकिस्तान के मेजर हिस्सों में फोग होती है, वो पोल्यूशन है, वो एग्रीकल्चर के वेस्ट को जो हम ज़ाया करते हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली और सरमायाकारी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पायदार तरक्की के लिए फौरी इक़दाम
नागुज़ीर है। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आ गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता हो गया। एक हफ्ते में यूरो 1 रुपये 76 पैसे और बरतानवी पाउंड 3 रुपये 48 पैसे सस्ता हुआ। आपको बता रहे हैं कि एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आ गई है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता हो गया है। एक हफ्ते में यूरो 1 रुपये 76 पैसे और बरतानवी पाउंड 3 रुपये 48 पैसे सस्ता हुआ है। अशरफ खान की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी, डॉलर सस्ता हो गया। पाकिस्तानी रुपए की कदर में एक हफ्ते के दौरान मामूली बेहतरी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 269 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 पैसे कमी के बाद 280 रुपये 75 पैसे की सतह पर आ गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के दरमियान फर्क कम होकर 1 रुपये 4 पैसे रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय करेंसियों की कदर में भी कमी देखी गई। एक हफ्ते के दौरान यूरो 1 रुपये 76 पैसे सस्ता होकर 333 रुपये 10 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 3 रुपये 48 पैसे कमी के बाद 383 रुपये 45 पैसे पर आ गया। खरीजी करेंसियों में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुत्तहदा अरब इमारात का दिरहम 2 पैसे बढ़कर 77 रुपये 25 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 3 पैसे इजाफे के बाद 75 रुपये 41 पैसे का हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई। स्टेट बैंक के ज़खायर में 5 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। इसके बाद स्टेट बैंक के मजमूई ज़खायर बढ़कर 16 अरब 15 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए। अशरफ खान, सिटी 21। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 44 पॉइंट्स कमी से 1,84,129 पर बंद हुआ। मौशी रिपोर्ट पर सरमायाकारों की नजरें जमी रही। जनवरी 2026 में तिजारती खसारा महाना 29% और सालाना 7% कम हुआ। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव मगर सिमत मुस्बत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मार्केट में हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 44 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,84,129 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,88,312 और कम तरीन 1,82,792 पॉइंट्स रही। कारोबारी सरगर्मियों के लिहाज से एक हफ्ते में 196 अरब रुपए मालियत के 4 अरब शेयर्स का लेन देन हुआ। स्टॉक मार्केट के माहिरीन की राय है कि सरमायाकार हफ्ते के दौरान मोहतात रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट कैपिटलाइजेशन में 55 अरब रुपए का इजाफा हुआ। माशी इशारियों के मुताबिक जनवरी 2026 में महंगाई की शरह 5.80% रही, जो दिसंबर में 5.61% थी। महाज पर जनवरी 2026 में तिजारती खसारा महाना बुनियाद पर 29%, जबकि सालाना बुनियाद पर 7% कम हुआ। जनवरी 2026 में तिजारती खसारा 2 अरब 73 करोड़ अमरीकी डॉलर रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान, सिटी 21। सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 11,700 रुपये महंगा। 1 तोला चांदी 444 रुपये इजाफे के बाद 8,269 रुपये पर पहुंच गई। आलमी बाजार में सरमायाकारों की फिर से सोने और चांदी में खरीदारी देखी गई। आलमी मार्केट में सोना 117 डॉलर महंगा होकर 4,967 डॉलर फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे पर मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 11,700 रुपये महंगा होकर 5,19,462 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 10,030 रुपये बढ़कर 4,45,354 रुपये का हो गया। सीनियर अस्पताल कोरंगी की जानिब से अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां पर शहरियों को मुफ्त मुआयना, स्क्रीनिंग के साथ मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गई। इकदाम पर शहरियों ने इंतहाई खुशी का इजहार कर दिया। इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट। महंगाई में मुफ्त इलाज अवाम के लिए बड़ा सहारा। मौजूदा महंगाई के दौर में बीमारियों का इलाज इम्तिहान से कम नहीं। ऐसे में चिन्होट अस्पताल कोरंगी की जानिब से रमजान उल मुबारक से कबल एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। 19 से जायद मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर डॉक्टरों ने अवाम का मुफ्त मुआयना, मुफ्त स्क्रीनिंग के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद मुनीर और दीगर ने कहा कि हर माह अस्पताल की जानिब से मुस्तहिक मरीजों को लाखों रुपए का मुफ्त इलाज
किया जाता है। कोई अनकरीब कोई 19 से 20 सब स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें जनरल फिजिशियन हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जितनी भी सब स्पेशलिटीज़ हैं उन सब के माहिरीन कंसल्टेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग के टेस्ट हैं वो हम जनरल पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कैंप जो है ये हमारा रेगुलर इवेंट है, हम हर साल लगाते हैं। एक तो एनुअल कैंप होता है, इसके अलावा हमारा एक हेपेटाइटिस का कैंप होता है, एक डायबिटीज़ का कैंप होता है। ये सारे फ्री कैंप्स हैं जो हम करते हैं, जिसमें हम फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ रुपया पर मंथ हम यहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं। कैंप में मुआयना, टेस्ट और अद्वियात हासिल करने वाले मर्द और ख़वातीन ने खुशी का इजहार किया। जल्दी चेकअप हो गया, देर से आए थे मगर फिर भी बहुत अच्छा चुनेट, अच्छा कैंप लगाया, अच्छी दवाई दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। आज मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम ही मैं यहाँ से एनवेलप मिला था मुझे, मैंने यहाँ पे देखा तो मैं आया और यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा यानी कि लोग आए हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि हर साल मुतअद्दिद मुफ्त मेडिकल कैंप व आगाही कैंप लगाने का सिलसिला जारी रहता है, जिससे लांढी, कोरंगी और दीगर इलाकों के लोगों को मजीद बेहतर सहूलतें मैसर हो रही हैं। कैमरामैन नवीद के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। CPSP के 59वें कॉन्वोकेशन की तकरीबात कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान के सदर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना है कि कॉलेज ने अब तक 50,000 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट तैयार किए हैं। यहाँ से तालीम याफ्ता दुनिया भर में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस सर्जन पाकिस्तान मुल्क की आला तिब्बी तालीम का सबसे बड़ा इदारा 62 में इस्टेब्लिश होने के बाद 50,000 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट और 40,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कॉलेज अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराता है हर साल। 2023, 2024 दुनिया भर के रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाए। अभी 6, 7 और 8 फरवरी को हमारी 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिकल एजुकेशन, जिसमें आज देख रहे हैं, आज उसका इनॉग्रल सेशन है। कल कन्वोकेशन 59 हुई, जिसमें हमने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ग्लासगो और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन कनाडा के प्रेसिडेंट को एक ऑनर भी किया और आज वो हमारे की नोट स्पीकर हैं, सेशन को चेयर्स कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर के रॉयल कॉलेजेस के सदूर मौजूद हैं, जिसमें ख़ास तौर पे कनाडा के सदर पहली मरतबा है, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन कनाडा, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ग्लासगो, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडिनबरा, रॉयल कॉलेज थाईलैंड से, इसी तरीके से श्रीलंका, अमान, मिडल ईस्ट, सार्क रीजन, डेवलपर्ड और ACCME जो एक्रेडिटिंग बॉडी पूरी दुनिया की होती है, इसके सदर प्रोफेसर ग्राहम तशरीफ़ लाए। इस लिहाज से तकरीबन 20 के करीब ममालिक से डेलीगेट्स आए हुए। रॉयल कॉलेज के अलावा लीडर्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च स्कॉलर, इसका सेशन चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है, इसमें कंपैशन है, रिजिलियंस है, कोलैबोरेशन है, इनोवेशन है। और रिजिलियंस और कंपैशन यानी सॉफ्ट स्किल डॉक्टर के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल में पाकिस्तान रोबोट ओलंपियाड 2026 का इनेकाद। मुल्क भर के 35 से ज़्यादा स्कूल्स के तलबा की शिरकत। इवेंट का मकसद स्टेम तालीम का फ़रोग़, नौजवान तलबा में तख्लीकी सोच और जिद्दत को परवान चढ़ाना है। राबेल सदीद की ये रिपोर्ट। टीम तालीम अमली जिद्दत की मिसाल। हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल में पाकिस्तान रोबोट ओलंपियाड की मुनफरिद तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा ने अपने रोबोट्स खुद तैयार किए, जिनमें मैकेनिकल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। जदीद नुमाइश में दुनिया के मसाइल के जदीद हल पेश किए गए। स्कूल के एसोसिएट डायरेक्टर फातिमा पीरजादा खान के मुताबिक ओलंपियाड का मकसद अमली स्टीम तालीम को फरोग देना, नौजवानों में तनकीदी सोच और मसला हल करने की सलाहियत को बेहतर बनाना है। इसका जो मकसद है इवेंट का वो है बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी इनोवेशन एक इवेंट के अंदर लाना। एंड आपको हर एज ग्रुप का बच्चा यहाँ दिखेगा, फ्रॉम स्मॉलर एजेस टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एज वेल, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को और अपने रोबोट्स को रेडी किया है। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स रेडी किए हैं और वो ला के यहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इट इज़ अ प्रॉपर कंपटीशन दैट टेक्स प्लेस। हुआत समात से महरूम तलबा ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया और इवेंट को खुश आइंद करार दिया। मैं पहले जब मैंने देखा तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं जब ये टेक्नो बॉस का ये शुरू हुआ तो उसके बाद है ना हमें मालूम हुआ कि किस तरीके से ट्रेनिंग चली है और जिस तरीके से हमें दिया गया, उसके बाद हम बहुत खुश हैं और हम यहाँ पर हैप्पी पैलेस यहाँ पर आए हैं
اور ہمیں بہت ایکسائٹیڈ ہیں, ہم خوش بھی ہیں کہ یہاں پر آ کر ہمیں پہلی دفعہ انہیں اتنا سب کچھ دیکھنے کو ملا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے ایونٹس نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کی جانب راغب کرنے اور مستقبل کی سائنسدانوں اور انجینئرز کی تیاری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. کیمرامین امجد کے ساتھ رابل صدیق, سٹی 21. کراچی لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے روز علم, ادب, معیشت اور فیشن پر مبنی اہم سیشنز منعقد ہوئے. فیسٹیول کے مختلف ہالز میں سنجیدہ مکالموں اور فکری نشستوں کا سلسلہ دن بھر جاری رہا. رپورٹ کر رہی ہے راہیل بے. دوسرا روز علم و ادب, معیشت اور فیشن کے نام رہا. ادبی میلے میں معیشت سے متعلق سیشن فکسنگ دی فنڈامنٹلز پاکستان اکنامک ریسرچ میں ڈاکٹر عشرت حسین, اسد عمر اور مفتاح اسماعیل نے اظہار خیال کیا. مقررین نے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے بنیادی اصلاحات, پالیسی تسلسل اور گورننس پر زور دیا. سیشن کی نظامت محمد اسفر احسن نے کی. In the first, let me submit very humbly that I did not apply for the position of the governor. I did not apply for the position of director IBA. And I did not apply for the... رانی کی بھوک چمکی اور وہ رسوئی نام کے 2 برتن کھڑکھڑانے لگی. وہاں کچھ ہوتا تو اسے ملتا. کٹیا کسی ودوا کی زندگی کی طرح ویران تھی. فیشن سے متعلق سیشن پاکستانی فیشن انڈسٹری سے زیاد بشیر, رضوان بیگ اور مشک کلیم نے شرکت کی. شرکا نے سوشل میڈیا کے دور میں فیشن کی عالمی شناخت پر تفصیلی گفتگو کی گئی. کراچی لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف سیشنز میں بھرپور شرکت کی. دوسرے روز کا اختتام پاکستانی فلم چکر کی اسکریننگ سے کیا گیا. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ راہیل بیگ, سٹی 20. محکمہ کھیل کے زیر اہتمام مٹھی میں منعقد ہونے والا دوسرا تھر اسپورٹس فیسٹیول کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. ایونٹ میں ہزاروں ایتھلیٹس نے حصہ لیا. سیکرٹری اسپورٹس منور علی مہیسر نے کامیابی حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے. دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی یہ رپورٹ. سندھ حکومت اور محکمہ کھیل کے زیر اہتمام مٹھی میں منعقد ہونے والا دوسرا تھر اسپورٹس فیسٹیول رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ختم. مقابلوں کے نتائج کے مطابق رسا کشی اور فٹ بال میں ویسٹ اسکول مٹھی نے کامیابی حاصل کی. ونج وٹی کے مقابلوں میں نارتھ اسکول گرلز مٹھی نے پہلی پوزیشن اپنے نام کی. بوائز شوٹنگ بال میں میرپور خاص اور تھرپارکر کی ٹیمیں کامیاب ہوئیں. گرلز کرکٹ میچ میں ٹورنامنٹ گرلز ہائی اسکول نارتھ کالونی فاتح ٹھہری. تمام کامیاب اور نمایاں ٹیموں کو کیش انعامات اور ٹرافیاں دی گئیں. تھر اسپورٹس فیسٹیول کے دوران اونٹوں اور گھوڑوں کی ریس, روایتی کھیل, ملاکھڑا اور منی میراتھن جیسے دلچسپ مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا. تھر اسپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی سیکرٹری کھیل سندھ منور علی مہیسر تھے, جنہوں نے مختلف کھیلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں اور ٹیموں میں کیش انعامات, ٹرافیاں اور شیلڈ تقسیم کی. جاوید اقبال, سٹی 21. گوادر کے کرکٹرز کراچی میں بھی کامیابیاں سمیٹنے لگے. راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی میں گوادر کرکٹ اکیڈمی نے اپنا پہلا فلڈ لائٹس میچ اپنے نام کر لیا. گلبرگ کرکٹ اکیڈمی کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. اور اس حوالے سے شیر بلوچ کی یہ رپورٹ. کراچی کے راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ میں کھیلے گئے تاریخی فلڈ لائٹس میچ میں گوادر کرکٹ اکیڈمی نے گلبرگ کرکٹ اکیڈمی کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. یہ میچ سی پیک کے شہر گوادر کی کرکٹ تاریخ کا پہلا نائٹ میچ تھا. گلبرگ کرکٹ اکیڈمی نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا, تاہم پوری ٹیم 98 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. جواب میں گوادر کرکٹ اکیڈمی نے اعتماد کے ساتھ ہدف کا تعاقب کیا اور صرف 11ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر میچ اپنے نام کر لیا. کراچی آئے ہیں ان بچوں کو ایک ایکسپوجر دینے کے لیے, کیونکہ گوادر کرکٹ اکیڈمی گوادر میں گراس روٹ لیول پہ کام کر رہی ہے اور گوادر کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہماری گوادر سے کوئی ٹیم آ کے کراچی میں فلڈ لائٹس میں کھیل رہی ہے. لڑکے بہت اچھا کھیل رہے ہیں, بہت انرجیٹک ہیں. پہلا اوور بہت زبردست کر رہا ہے, لڑکوں کا پیس بھی اچھا ہے. میں گوادر سے تعلق رکھتا ہوں, گوادر اکیڈمی کا میں کیپٹن ہوں. آج ہم آئے ہیں 800 کلومیٹر سفر کر کے ادھر راشد کرکٹ اکیڈمی میں. بہت اچھے ایکسپیرینس ہے, پہلی دفعہ نائٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم لائٹوں کے نیچے. گوادر سے انڈر 13 کا کھلاڑی
आज हम आए हैं कराची और नाइट मैच खेल रहे हैं फर्स्ट टाइम। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद ने शानदार कारकर्दगी पर फास्ट बॉलर जलील JR को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस तारीखी मुकाबले का इनेकाद राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी के मैनेजर सरवत अली ने चेयरमैन गवादर क्रिकेट एकेडमी हाजी अब्दुल हमीद के इश्तराक से किया, जबकि साबिक कप्तान राशिद लतीफ की जानिब से गवादर क्रिकेट एकेडमी के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया भी दिया गया। जानशेर बलोच, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि माई कराची नुमाइश 2026 का शानदार इनकाद। नुमाइश में बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड का स्टॉल तवज्जो का मरकज़ बन गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम माई कराची नुमाइश का शानदार आगाज़ किया गया। मेगा इवेंट में मुल्क भर से ताजिरों, सनतकारों, अवाम और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड का स्टॉल अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। सिंध हुकूमत के तहत काम करने वाला ये इदारा सूबे के नौजवानों को 400 से ज़ायद शोबों में फ़नी तरबियत फ्राहम कर रहा है। इस मौका पर बोर्ड के सेक्रेटरी मुनव्वर अली मिठानी, इंजीनियर तैमूर सियाल ने इदारे की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर सैयद मोहम्मद अली, डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर फैसल अंसारी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ, असिस्टेंट डायरेक्टर जहांजेब कमाल, असिस्टेंट डायरेक्टर अरसलान और दीगर अफसरान ने आगाही मुहिम में भरपूर किरदार अदा किया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।